ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ پہلی بار ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سب غصے سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ صوفے پر بیٹھا کاظم شاہ مسکراتی نظروں سے اس معصوم لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی مرحوم پھپھو کی بیٹی تھی، یتیم اور لاوارث تھی، سالوں سے اس گھر میں ظلم سہتی آئی تھی۔ اب جب اس کی شادی کسی اور سے ہو رہی تھی تو وہ لڑ رہی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، پر اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا حسن کاظم شاہ کو بھا گیا۔ اسے وہ پہلی بار اچھی لگی تھی اور اب وہ اسی کی تھی۔ اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور وہ جلدی سے اپنی جگہ پر بیٹھا۔ آج پھر اس نے وہی خواب دیکھا تھا جو وہ پچھلے چند سالوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس خواب سے وہ بہت پریشان ہو چکا تھا۔ وہ ایک کمرے میں بند تھا جہاں اسے ایک لڑکی کے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ وہ اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا تھا، مگر اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ کمرہ چاروں طرف سے مکمل طور پر بند تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسے اس جگہ پر رکھنے کے لیے کسی نے وہ کمرہ بنایا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی دیواریں ایک دوسرے کے قریب آنے لگتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مسخ کر دیتی، اس کی آنکھ کھل جاتی۔ آج بھی اس کا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے پورے وجود پر سوار ہو گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ کھڑکی پہ دیکھا۔ ابھی تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 3 بج رہے تھے، یعنی باقی کی رات اس نے جاگ کر گزارنی تھی، کیونکہ جب ایک بار کاظم شاہ کی آنکھ کھل جائے تو دوبارہ اسے نیند نہیں آتی تھی، چاہے وہ کتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لے۔ اس نے سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور ایک سگریٹ سلکاتا بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ چاند اپنے جوبن پر تھا۔ پورے لان میں چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے خوش کر دیتی تھی۔ اسے وہاں پر کھڑے تھوڑی دیر گزری تھی جب اسے کسی کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنے گھر والوں کو منا لو گے تاکہ پھر میں اپنے گھر میں بات کروں۔ وہ کسی کا منت بھرا لہجہ تھا۔ ایک پل کو تو وہ حیران ہوا، مگر آواز پہچان کر اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حویلی میں واپس آئے اسے تقریباً 2 ہفتے گزرے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں وہ اس لڑکی کو پہلی بار بولتے سن رہا تھا۔ یوں تو وہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سنتا تھا، مگر زرمینہ کی باتوں میں اسے دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ اس نے سگریٹ کا ایک اور کش لگایا اور دھواں ہوا میں چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تم کل ہی اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ اس کے بعد اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا بدمزہ ہوا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا ایک بہت ہی اچھا ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا، مگر یہ کیا، اس نے تو بہت جلدی کال کاٹ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دوبارہ اپنے کمرے میں جاتا، بے ساختہ اس کی نظر زرمینہ پر پڑی، جو اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لان کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا ہوا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس وقت اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے، اور وہ اپنے حسن سے مکمل طور پر بے نیاز اپنی زندگی پر ماتم منا رہی تھی۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے نہیں گزاری تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتی آئی تھی اور انہی کا حکم مانتی آئی تھی، مگر اب نہیں۔ اس بار وہ کسی کو بھی یہ موقع نہیں دے گی کہ وہ اس کی زندگی کا فیصلہ کرے۔ اس بار وہ کسی کو بھی اپنی خوشیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے گی، اور نہ ہی وہ کسی اور کا حکم مان کر اپنے آپ کو نظر انداز کرے گی۔ اس بار وہ اپنی خوشیوں کے لیے لڑے گی اور ان لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی جنہوں نے اسے ہمیشہ دبا کر رکھا۔ وہ یہ ساری باتیں اپنی ذات سے کہہ رہی تھی۔ دور کھڑا کاظم شاہ بہت ہی مطمئن انداز میں اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ایک بہت بڑا ارادہ رکھتی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس کی ماں کے سامنے وہ ٹک نہیں پائے گی، اور اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ جتنی ہوا میں یہ لڑکی اڑ رہی ہے اس کی ماں کو دیکھ کر فوراً سے زمین پر واپس آ جائے گی۔
चंद ही लम्हों में वो बेजार हो गया, क्योंकि काजिम शाह को औरत की ज़ात में सिर्फ इस हद तक दिलचस्पी थी कि वो एक नज़र उसे देख लेता। अगर वो औरत हसीन होती तो उसके हुस्न की दाद देता और फिर अपनी नज़रें फेर लेता। उसकी अपनी ज़िंदगी थी जिसमें वो बहुत मगन था, और उसके पास औरत ज़ात के लिए वक्त भी नहीं था। वो बिजनेस में दिलचस्पी लेता था। चंद ही सालों में उसने अपना बिजनेस आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। लोग उसके साथ कारोबार करने के ख्वाब देखते थे। न सिर्फ वो बिजनेस में बहुत अच्छा था, बल्कि उसके साथ साथ उसने सियासत में भी हिस्सा ले लिया। जब वो टीवी पर तकरीरें देता तो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ उसे देखने के लिए उसकी तकरीरें सुनती। हर जगह पर उसका नाम था, हर किसी की ज़बान पर उसकी तारीफ़ें थीं और हर किसी की आंखों में उसके लिए सताइश थी। वो इन सारी चीज़ों से अच्छे से वाकिफ़ था और इन्हीं चीज़ों ने उसे मगरूर बना दिया था। वो किसी और को खातिर में नहीं लाता था, सिर्फ अपनी ज़ात को अहमियत देता। वो ये सोचता था कि बाकी उसके मुकाबले के नहीं हैं। सुबह 8 बजे का वक्त था जब उसे बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। वो बेजारियत से उठा। बाहर जाकर देखा तो वो लड़की इस वक्त किचन में खड़ी आंसू बहा रही थी। करीब ही कासिम शाह की बहन फारिया खड़ी थी। फर्श पर कांच की प्लेट टूटी पड़ी थी और करीब ही एक सैंडविच भी अपनी कम मायगी पर अफसोस कर रहा था। कासिम शाह की आंख लगे अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि शोर की आवाज़ से वो फिर से उठ गया। उसके माथे पर गुस्से से बल पड़ गए। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो फारिया के सर पर जा खड़ा हुआ और चीखते हुए कहने लगा, ये क्या तरीका है? तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं? जो लोग सो रहे हैं उनका ही लिहाज कर लो। उसकी शेर जैसी धाड़ सुनकर ना सिर्फ ज़रमीना बल्कि फारिया भी बहुत खौफजदा हो गई। उसने आज से पहले अपने भाई को कभी इस कदर गुस्से में नहीं देखा था। भाई, वो इसने मेरा सैंडविच ख़राब कर दिया। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, वो गुस्सा करते बोला, सैंडविच ही ख़राब हुआ है, कौन सा किसी को मार दिया है? अगर तुम्हें इसके खाने से इतना ही मसला है तो खुद अपने लिए नाश्ता बना लिया करो। यूं दूसरों के साथ साथ मेरा दिमाग ख़राब ना किया करो। तुम लोगों को आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं। अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मैं ये हवेली छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद मुझे ना कहना कि मैं दोबारा यहां पर आऊं। उसको बुरी तरह से झाड़ कर वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि फारिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने नफरत भरे अंदाज में ज़रमीना के चेहरे की तरफ देखा और रोते हुए बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अभी मामा को जाकर बताती हूँ। तुमने भाई को मेरे खिलाफ भड़काया है, इसी वजह से उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया। ये तुम क्या कह रही हो फारिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देखो, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। ज़रमीना यकदम खौफजदा हो गई। वो न सिर्फ अपनी कज़नों बल्कि अपनी ममानी की जहनीत से भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी, और उन्होंने इसे वाज़ेह अल्फाज में ये बात समझाई थी जब कासिम शाह को पाकिस्तान आए हुए चंद ही दिन रहते थे। उसकी ममानी ने इसे अपने पास बुलाया था और उसे कहा था, खबरदार जो तुमने अपने हुस्न का जाल मेरे बेटे पर चलाया। अगर तुमने उसे फंसाने की कोशिश की तो उसी दिन तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूंगी और तुम्हारी कब्र इसी स्टोर रूम में बना दूंगी। ममानी की बातें सुनकर वो बहुत खौफजदा हो गई थी। ममानी जान, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं उनके सामने भी नहीं जाऊंगी। उसने उन्हें जैसे यकीन दिलाया, और आज कुछ भी किए बगैर वो उनकी नज़रों में गुनहगार ठहराई जा चुकी थी। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने उसे अपने सामने हाजिर किया। वो नज़रें झुकाते उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, जैसे वो उनकी कोई मुलाजमा हो या उनकी कोई गुलाम हो। कभी कभार तो वो ये सोचती थी कि उसकी हैसियत इस घर में मुलाजमा से भी बदतर है। मुलाजमा को तो फिर थोड़ी सी इज्जत दी जाती थी, उसकी तो कोई ज़रा भी कदर नहीं करता था। जिसका जब दिल करता उसे जलील और रुस्वा कर देता। मुमानी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा तो वो किसी पतंग की तरह खींचती हुई उनके करीब जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें मैंने क्या समझाया था कि तुम मेरे बेटे से फासले पर रहोगी? उन्होंने उसे एकदम से बालों से पकड़ा और उसका सर जोर से झटका। वो दर्द के मारे करा उठी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर मुमानी की गिरफ्त बहुत मजबूत थी।
वो चाह कर भी खुद को आज़ाद नहीं करवा पा रही थी। ममानी, मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, उसने दर्द से कराते हुए कहा। अम्मी, ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद इसे भाई से बात करते देखा था। ये भाई के सामने आंसू भी बहा रही थी। मुझे तो लग रहा है इसने भाई को हमारे खिलाफ भड़काया है। इसी वजह से तो उन्होंने सुबह सुबह मुझ पर इतना गुस्सा किया। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहां पर काजिम शाह खड़ा उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। अपने भाई को देखकर पहली बार उसे शर्मिंदगी हो रही थी। उसकी जबान को यकदम ब्रेक लगा। काजिम शाह छोटे छोटे कदम उठाता उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। हाँ, मुझे बताओ कि तुमने और क्या देखा था? वह बराह रास्त अपनी बहन की आंखों में देख रहा था, जबकि वो बार बार उससे निगाहें फेर रही थी। अम्मी, इससे पूछे ये खामोश क्यों हो गई? थोड़ी देर पहले तो ये बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही थी। वो इतना जोर से चिल्लाया कि फारिया ने फिर से रोना शुरू कर दिया। वो अपनी मां के पीछे जाकर छुप गई। आमना बेगम ने गुस्से से एक नज़र अपने बेटे को देखा और डांटते हुए कहा, ये क्या तरीका है अपनी छोटी बहन से बात करने का? क्या तुम सारी तमीज भूल कर आ गए हो? मैं तमीज नहीं भूला, बल्कि ये अपनी हदूद भूल गई है। ये झूठ बोल रही है। मजाल है जो इस लड़की ने मुझसे बात की हो, या मजाल है जो इसने आपके बारे में मुझसे शिकायत लगाई हो। अरे मैं तो इसे अभी पहली बार नजर भर कर देख रहा हूं, और आप ही मुझे बताएं कि इसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि आपको लगता है मैं इसका दीवाना हो जाऊंगा? जरमीना ने बेसाख्ता निगाहें उठाकर इस मगरूर शहजादे को देखा, जो वाकई खुद को किसी सल्तनत का बादशाह समझने लगा था। और आप मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर दोबारा कभी आपने मेरे किरदार पर या फिर किसी और के किरदार पर इस तरह से इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, इस लड़की को अब कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस घर में मैं किसी पर भी जुल्म होता बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप में से किसी ने इसे हाथ लगाया तो मैं खुद उसे देख लूंगा। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से निकलने वाला था कि फिर से पलटा और जमीना की आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या बुत बनकर यहां खड़ी हो गई? क्या मार खाने का बहुत शौक है? चलो निकलो यहां से, अपने कमरे में जाओ। वो मैंने खाना। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसने जमीना की बात काटी। खाना बनाने के लिए यहां पर बहुत से कुक और नौकर मौजूद हैं। तुम ये सारे काम छोड़ो और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। अब की बार जमीना ने अपनी निगाहें झुका दी थी। अब मुझे ये ना कहना कि तुम पढ़ती नहीं हो, उसने बेजारियत से कहा। तुम्हें इसकी क्यों इतनी फिक्र हो रही है? आमना बेगम फिर से बोल पड़ी। अम्मी, बस अब खामोश हो जाए। बहुत सुन ली आपकी बातें, अब मजीद कोई बात नहीं सुनूंगा। ये हमारे घर में रहती है, और इससे पहले आप ये जान ले कि ये भी एक इंसान है। हमारी तरह ही सांस लेती है, चलती फिरती है। इसके भी हमारी तरह ही एहसास और जज्बात हैं, जो यकीनन आप लोग भूल चुके हैं, या फिर जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। मैं अगर इसकी फिक्र कर रहा हूं तो इंसानियत के नाते कर रहा हूं। अगर आप में इंसानियत मर गई है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये कहकर वो गुस्से से तन फन करता कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे जरमीना भी भागी हुई अपने कमरे में चली गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका अंदाजा ठीक था, ये इंसान वाकई अपने घर वालों से बहुत मुख्तलिफ था, वरना पिछले 18 सालों में उसकी मुमानी ने कोई भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जिसमें उस पर जुल्म न किया हो, या जिसमें उसे उसकी औकात याद ना दिलाई हो। बेसाख्ता उसने ऊपर देखा और अपने रब का शुक्र अदा किया। तकरीबन 4 बजे का वक्त था जब उसके मोबाइल पर कॉल आई। उसने देखा जुनैद कॉलिंग लिखा रहा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या तुमने अपनी मुमानी से बात की? दूसरी तरफ से सलाम मौसूल नहीं हुआ था, बल्कि डायरेक्ट सवाल आया था। एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गया। जुनैद ने एक गहरी सांस ली। वो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, मगर नॉर्मल कर नहीं पा रहा था। देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मोहब्बत निभा नहीं सकते तो मुझसे मोहब्बत की क्यों?
بے یقینی سے اس نے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے چہرے کو تو نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر اس کا نام گھورے جا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنید کبھی اسے اس طرح کا سوال کرے گا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پلیز یار، ابھی ایموشنل نہ ہو جانا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور تمہاری وجہ سے بہت مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ تم اپنی ممانی سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ آخر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ منع کر دیں گی۔ میں نے تمہیں اس کا بھی حل بتایا ہوا ہے، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ تیزی سے انکار کرتے بولی، ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں نہ صرف ان کی نظروں میں گر جاؤں گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کبھی خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اور تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو کہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ تو تمہارے خاندان والے میری قدر کریں گے اور نہ ہی… بس کر جاؤ، خدا کے لیے بس کر جاؤ۔ میں تھک چکا ہوں تمہارے لیکچر سن سن کر، مجھ سے اب مزید کچھ نہیں سنا جاتا۔ تمہیں میں نے ایک آپشن دیا ہے، اگر تم یہ ماننے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بتا دو، میں اپنی امی کی پسند سے شادی کر لیتا ہوں۔ جنید، تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم میری سچویشن سے اور میری پوزیشن سے اچھے طریقے سے واقف ہو۔ تم مجھے صرف اور صرف 2 دن کا وقت دے دو، میں کچھ کرتی ہوں۔ ان دنوں میں اپنی ممانی جان سے بات کر لوں گی۔ وہ پھر سے ایک بار اسے جھوٹی تسلی دے رہی تھی، وہ ایک بار پھر سے اسے جھوٹا دلاسا دے رہی تھی، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ اپنی مامی کے سامنے وہ کبھی زبان نہیں کھول پائے گی۔ مگر اس دن کچھ ایسا ہوا تھا جس نے نہ صرف اس کو بلکہ سب گھر والوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ رات کا وقت تھا، وہ سب کے ساتھ میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اور یہ کاظم شاہ کا ہی حکم تھا کہ وہ آج کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرے گی۔ جب اسے اپنی مامی کی آواز سنائی دی، میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے، اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے، اسے لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر گر گئے ہوں۔ اس نے بے یقینی سے اپنی مامی کی طرف دیکھا، مگر وہ اس وقت کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ اس نے کاظم شاہ کو دیکھا تو وہ بھی ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کی اس حرکت پر سب لوگ حیران تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تمہیں کبھی کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ مامی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی کسی نے اس طرح اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھلایا جو مجھے کوئی تمیز سکھاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں نفرت بھر گئی تھی۔ کاظم نے اب کی بار حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس نے اس کی ماں کو جواب دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی تھوڑی کے نیچے رکھ دیا اور دلچسپی سے سامنے چلنے والا منظر دیکھنے لگا۔ بہت جلد کچھ طوفانی ہونے والا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ نہ جانے کیوں اسے ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ کافی عرصے سے اس لڑکی کو بولتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ہر وہ شخص جو کہ ایک لمبے عرصے تک خاموش رہا ہو، اس کے اندر ایک طوفان بھرا ہوتا ہے جو ایک دن باہر آ ہی جاتا ہے۔ اب وہ اسی طوفان کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ میں نے تمہیں ایک دن اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا ہی کیا کھلا لیا، تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگی۔ اس نے ممانی کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور 2 ٹوک انداز میں کہنے لگی، میں اگلے ہفتے شادی نہیں کروں گی، اور نہ ہی میں آپ کی مرضی سے کسی شخص سے شادی کروں گی۔ میں کسی اور انسان سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اس میں کچھ بھی غلط نہیں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بدبخت عورت، مجھے پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ تم میری ناک کے نیچے منہ کالا کر رہی ہو۔ اگر اسی وقت تمہیں لگام ڈال دیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تیری شادی تو اسی بوڑھے آدمی سے ہوگی۔ اس کی زبان پر آخرکار سچ آ ہی گیا۔ وہ اس کا رشتہ ایک بڑی عمر کے شخص سے طے کر چکی تھی، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی سے جان چھڑانا تھا، نہ کہ اس کا گھر بسانا۔
काजिम ने पहली बार अपनी मां को नापसंदीदगी से देखा। मैं भी देखती हूं कि कौन मेरा निकाह उससे करवाता है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ किसी किस्म की जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। इस बार मैं किसी की इज्जत का ख्याल नहीं रखूंगी। इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियां देखूंगी। बहुत हो गया, नहीं बर्दाश्त होता अब मुझसे। खत्म हो गई है मेरी बर्दाश्त की हद। वो जैसे चीख रही थी, उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। तुम किसको पसंद करती हो? बिलाखिर काजिम शाह बोला, जो कि काफी देर से ये ड्रामा खामोशी से देख रहा था। वो सहमी हुई नजरों से उस शख्स की तरफ देखने लगी जिसके चेहरे के तासुरात वो समझने से मुकम्मल तौर पर कासिर थी। उसने अपनी निगाहें झुका ली। मैं जुनैद खान से मोहब्बत करती हूं। ये शख्स कौन है? तुम्हें कहां पर मिला? एक ही सांस में उसने इतने सवालात कर डाले। मुझे लाइब्रेरी में मिला था। तुम्हें उससे मिले कितने साल हो गए? कितना अरसा हो गया है तुम लोगों के इस रिश्ते को? तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। उसने अब की बार उन सब लोगों से निगाहें चुराई। जब वो पहली बार अपनी कज़न के साथ लाइब्रेरी गई थी तभी वो उसे मिला था, जिससे वो पहली ही नज़र में प्यार करने लगी। उसके बाद वो वक्फे वक्फे से लाइब्रेरी जाती रहती थी, जबकि असल मकसद तो इस इंसान से मुलाकात करने का होता था। जुनैद एक बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर में दौलत की रेल पेल थी। अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। हर चीज़ मांगने से पहले ही मिल जाती थी। उस दिन वो एक बुक इशू करवाने लाइब्रेरी अपने दोस्त के साथ आया था, वरना उसे इन जगहों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। वहां पर जब उसने पहली बार इस लड़की को देखा तो पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो गया। मासूम सी ज़रमीना उसके दिल को भा गई थी। अगले दिन उसके दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो फिर से लाइब्रेरी जाए। पूरा दिन वो वहां बैठकर उसका इंतज़ार करता रहा, मगर वो लड़की इसे दिखाई नहीं दी। एक दिन उसने लाइब्रेरियन को पैसे देकर ज़रमीना की कज़न का नंबर लिया था, लेकिन वो नंबर घर का था। उसने कॉल मिलाई तो उसकी खुशकिस्मती हुई कि दूसरी तरफ से ज़रमीना ने कॉल उठा ली, वरना अगर कोई दूसरा इंसान कॉल उठा लेता तो उसकी सख्ती आ जाती। मैं आपको बेतहाशा पसंद करने लगा हूं, आपका दीवाना हो गया हूं। सोते जागते सिर्फ और सिर्फ आपका ही ख्याल मुझे सताता रहता है। मेरी हालत पर रहम करें और मुझसे एक मुलाकात कर लें। उसके लहजे में मिन्नत थी और उसके साथ साथ मोहब्बत का अंसर भी शामिल था। उसकी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। खौफजदा नज़रों से उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर उसके अलावा दूसरा कोई मौजूद नहीं था। वो कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी, मैं अपनी मुमानी के साथ रहती हूँ और मुझे घर से बेमकसद निकलने की इजाज़त नहीं है। मैं नहीं आ सकती। दूसरी तरफ वो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर इस खौफ से वो उससे मिलने के लिए चली गई कि अगर उसने दोबारा घर में कॉल कर दी और सब लोगों को इस बारे में पता चल गया तो उसकी शामत आ जाएगी। उसने एक नौकरानी से मदद ली थी। उस दिन उसकी मुमानी घर पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी आज़ादी मिल गई थी। जब वो लाइब्रेरी गई तो वो दरवाजे पर ही खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। ज़रमीना ने उसे पहली बार देखा था, क्योंकि जब पिछली बार वो आई थी तब उसने किसी की तरफ भी निगाह उठाकर नहीं देखा था, बल्कि सबको नज़रअंदाज किया था। खामोशी से कज़न के साथ अंदर गई और किताब लेकर वापस चली गई थी। इस दौरान किसने उसे देखा और किसको वो पसंद आ गई, उसका इससे कोई मतलब नहीं था। शुक्र है तुम आ गई। अगर तुम ना आती तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मर जाता। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? और आप हैं कौन? उसने बेजारियत से उसके चेहरे की तरफ देखते कहा। वाह, क्या अदाए बेनियाजी है। यहां मैं आपके लिए पागल हो रहा हूं और आपका एक दीदार देखने के लिए तरस रहा हूं। अभी तक आपको मेरा पता नहीं चल सका कि मैं कौन हूं। अरे मैं आपका आशिक हूं, आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूं। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी। उसकी इस तरह की बातें सुनकर इसका दिल तेजी से धड़का
जिंदगी में पहली बार वो किसी के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार सुन रही थी। उसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि उसकी आंखों में खौफ उतर आया। अगर घर में किसी को इस बारे में पता चल जाता, उसके बाद वो सोच भी नहीं सकी थी। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो उसकी परेशानी को फौरन नोट कर चुका था और इसके माथे पर चमकते पसीने को देख चुका था, इसीलिए उससे सवाल करने लगा। नहीं, कुछ नहीं, मुझे यहां से चलना चाहिए। मेरी मोमानी जान घर वापस आ चुकी होंगी। इससे पहले कि वो वहां से जाती, वो दोबारा से उसके सामने खड़ा हो गया। क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? नहीं, मेरे पास नहीं है, और ना। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसने अपनी जेब से ब्रांड न्यू आईफोन का डब्बा निकाला और उसके हवाले कर दिया। वो तेजी से पीछे की तरफ हटी। मुझे ये फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता, और सबसे पहली बात ये कि मुझे इस फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ इसे अपने पास रखें और मुझे परेशान मत करें। परेशान अब तुम मुझे कर रही हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुमसे एक लम्हा भी बात किए बगैर नहीं रह सकता, और तुम मुझे तंग कर रही हो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। उसने फिर से वही पुरानी धमकी दी थी, जिसे सुनकर वो बहुत डर गई थी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, वो जल्दी से बोली। उसने मोबाइल ले लिया, मगर अब वो बेचैनी से उस मोबाइल के डब्बे को देख रही थी। उसे वाकई इस्तेमाल करना नहीं आता था। दूसरी तरफ जुनैद को भी अंदाजा हो चुका था। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं तुम्हें इसके सारे फंक्शन समझा देता हूं। तुम आओ, थोड़ी देर आकर इधर बैठ जाओ। उसने एक बेंच की तरफ इशारा किया तो वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके साथ बेंच पर बैठ गई। उसके बाद जुनैद ने उसे मोबाइल के सारे फंक्शन समझाए थे और उसे बताया था कि वो कैसे इस मोबाइल को छुपा कर रख सकती है। वो उसकी सारी बातें बहुत गौर से सुन रही थी। उसे अब डर भी महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि एक अजीब सी अपनाहियत का एहसास हो रहा था। उसने वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकना था, लेकिन कब वक्त गुजरा उसे अंदाजा ही ना हो सका। जब उसे ख्याल आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो परेशानी से उठ खड़ी हुई। जुनैद ने उसे ऑफर की, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं, मगर वो सख्ती से मना करके भागती हुई अपने घर चली गई। जुनैद ने उसे वादा किया था कि वो रात के वक्त उसे कॉल करेगा। 8 बजे का वक्त था। वो सारा काम जल्द अज जल्द निपटा देना चाहती थी, इसीलिए जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी जब फारिया ने उसकी फुर्ती देखी। खैर तो है, आज जल्दी काम खत्म किए जा रहे हैं, कहीं रात बाहर गुजारने का इरादा तो नहीं? ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं फारिया बाजी? उसने बेचैनी से कहा। मैं कौन सा गलत कह रही हूं? ये कहकर वो जमाइयां लेती वहां से चली गई, जबकि इसका दिल एक बार फिर से तेजी से धड़का। अभी फारिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी वो उसके किरदार पर वार करती थी। अगर उसे जुनैद के बारे में पता चल जाता, उसके बाद वो सोच भी ना सकी। उस रात उसने जुनैद को मना किया, मगर वो उसकी कोई बात मानने के लिए और सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, और फिर उस रात भी वो उसकी बातों से कायल हो गई। और यूं उन दोनों के दरमियान बातचीत का आगाज हुआ। रोज रात को वो उससे घंटों फोन पर बातें करती रहती थी। उसे ना तो नींद का होश रहता था और ना ही किसी और चीज की फिक्र रहती। अगर दिन में उस पर कोई भी जुल्म सितम होता तो वो जाकर रात को जुनैद को बताती। वो उसे तसल्लियां और दलासे देता और उसे वादा करता कि बहुत जल्द वो उसे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाएगा। वो तो उस वक्त भी उसे निकाह करना चाहता था और उसे अपना नाम देना चाहता था, मगर वो अपनी मुमानी से डरती थी। उसे अपनी इज्जत पर हर्फ आने से खौफ आता था, जिस पर बाज़ औकात जुनैद उसे डांटता भी था कि इतनी जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने से तो अच्छा है अपनी मर्जी से शादी कर लो या फिर उस जगह से ही भाग जाओ। वो हर तरह से उसका साथ देने को तैयार था, मगर इसमें हिम्मत पैदा नहीं होती थी। इस सब को 4 साल गुजर चुके थे। काजिम शाह बचपन में ही अपनी खाला के साथ इंग्लैंड चला गया था।
وہاں پر ہی اس نے اسکول اور کالج کی تمام تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اس نے وہیں پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ تقریباً اپنی زندگی کے 14 سال وہاں پر گزارنے کے بعد وہ پاکستان واپس آیا۔ ان 14 سالوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جس میں اس نے زرمینہ کا نام نہ سنا ہو۔ اس کی ماں ہر روز اپنی بہن کو کال کرتی تھی اور ہر روز ہی زرمینہ کے بارے میں باتیں کرتی تھی، اس کی شکایتیں لگاتی تھی۔ بعض اوقات کاظم شاہ کو کوفت ہونے لگتی اور وہ اپنی ماں کو چڑھتے ہوئے کہتا تھا کہ اگر آپ کو وہ لڑکی پسند نہیں تو آپ اسے گھر سے نکال دیں، کم از کم آپ اس پر ظلم تو نہ کریں۔ جب اس کی خالہ اور اس کی ماں دونوں اس معصوم سی لڑکی کے خلاف اکٹھی ہو جاتی تب اسے بہت زیادہ بیزاریت ہوتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس حد تک ظالم ہو سکتی ہے، مگر تب وہ اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ زیادہ دیر وہ ان کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بہت جلد یہ ساری چیزیں بھول جاتا۔ مگر جب وہ پاکستان آیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے اس کی ماں زرمینہ کو تکلیف پہنچاتی ہیں تو اسے بہت دکھ ہوا۔ غصہ اسے زرمینہ پر بھی آتا تھا کہ وہ کیوں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، اور آج اس کا یہ غصہ ہنسی میں تبدیل ہو گیا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی بھی ظلم و ستم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی، آج اپنی شادی کے لیے بول رہی تھی۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی ممانی جان اسے دوبارہ سے مارتی، وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس بہت ہو گیا، رک جائیں، کیوں اسے مار رہی ہیں؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ پھر سے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ وہ تم سے شادی کر لے گا؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ 4 سال سے ہم دونوں ریلیشن شپ میں ہیں، اس نے ایک یقین سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا نمبر ملاؤ۔ وہ ایک لمحے کو حیران ہوئی۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ تھوڑا سا غصے سے بولا، میں کہہ رہا ہوں اس کا نمبر ملاؤ، میں نے اس سے بات کرنی ہے اور اسے کہوں گا کہ کل وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آ جائے۔ اس طرح سے اسے بھی یقین ہو جائے گا کہ تم ہم لوگوں کو منانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر گئی، وہاں سے فون اٹھا کر لائی۔ اس کے ہاتھوں میں جدید ماڈل کا موبائل دیکھ کر فاریہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اس پر جھپٹی تاکہ اس موبائل کو چھین سکے، مگر جلد ہی کاظم شاہ نے اس کی بازو پکڑ لی۔ تم نے اتنا مہنگا موبائل کہاں سے لیا؟ اس نے غصے سے اسے دیکھتے کہا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ کاظم شاہ اس کے بدلے ہوئے انداز دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا، جبکہ آمنہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا منہ نوچ ڈالے۔ تیسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا اور دوسری طرف سے اس کی بیزار سی آواز سنائی دی، مجھے یہ نہ کہنا کہ تمہارے گھر والے نہیں مانے۔ وہ کوئی جواب دیتے کاظم نے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ ہم لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں، تم کل ہی اپنے والدین کو لے کر یہاں پر آ جاؤ، تمہیں ہم زرمینہ کا رشتہ دے دیں گے۔ وہ غور سے اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت حسین تھی، وہ کسی کا بھی خواب ہو سکتی تھی اور کسی بھی مرد کو آسانی سے اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ یہ بات سن کر دوسری طرف جنید مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے گھر والے اتنی جلدی مان جائیں گے۔ وہ تو سوچ رہا تھا وہ زرمینہ کو بھگا کر نکاح کرنے پر مجبور کرے گا اور پھر اسے استعمال کر کے کچھ عرصے بعد چھوڑ دے گا، مگر یہاں تو کہانی ہی بدل چکی تھی۔ تم کون بات کر رہے ہو؟ اس نے جلدی سے اپنا لہجہ بھی چینج کیا۔ میں اس کا کزن بول رہا ہوں۔ اس کا موبائل تمہارے ہاتھوں میں کیا کر رہا ہے؟ اور یقیناً تم اس کے کمرے میں موجود ہو، آخر وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ کاظم شاہ نے بیزاریت سے موبائل اپنے کانوں سے دور کیا اور زرمینہ کی طرف دیکھتے کہا، تمہارا عاشق بھاگ گیا ہے۔
दूसरी तरफ से जुनैद फोन काट चुका था। मैंने तो पहले ही कहा था, इस लड़की को कोई प्यार नहीं कर सकता। आमना बेगम ने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि फारिया उसकी गालों को खींचते हुए बोली, अपने आशिक को बुला लेना, हमें तुम्हारा रिश्ता देने में कोई मसला नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है उसे यहां पर आते जरूर मसला होगा। ये कहकर वो खिलखिलाती हुई अपने कमरे में चली गई। अब वहां पर सिर्फ काजिम और जरमीना रह गए थे। वो सर झुका कर रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू टप टप जमीन पर गिर रहे थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जुनैद को भी उसे घर वालों के सामने उसे इस तरह से जलील कर देगा। हालांकि उसने कोई बुरी बात नहीं की थी और ना ही इनकार किया था, मगर उसका अंदाज और उसकी बातें इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई थी। वो लड़का तुम्हें काफी अरसे से धोखा दे रहा है। काजिम की बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसके लहजे में यकीन था, मान था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदेशा भी शामिल था। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता होता तो कभी भी इस तरह की बात नहीं करता, क्योंकि एक आशिक मर तो सकता है लेकिन अपने महबूब पर कभी भी शक नहीं कर सकता। चलो, रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में जाकर आराम करो। और रात के वक्त उसे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही उसकी मिन्नतें करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका है। जिस मकसद के लिए उसने तुमसे निकाह करना था, अब उसे पता चल गया है कि वो मकसद तो पूरा हो नहीं सकता। अब अगर उसे तुमसे शादी करनी पड़ी तो अपने घर वालों को हमसे मिलाना पड़ेगा, और वो एक ऐसा इंसान है जो ये कभी नहीं करेगा। अब ये सारी बातें इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? वो चीखी थी। मैं भी एक मर्द हूं और मर्द की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। जिन लोगों ने शादी करनी होती है वो कभी भागने का जिक्र नहीं करते, बल्कि वो अपनी औरत की इज्जत करते हैं और उनकी कदर करते हैं। वो उन्हें लाइब्रेरी में नहीं बुलाते और ना ही उन्हें पार्कों में दावत देते हैं। वो इज्जत के साथ घर में रिश्ता लाते हैं और घर वालों को मनाते हैं। अगर वो मर्द का बच्चा होता तो इतने अरसे तक तुमसे चक्कर ना चलाता, बल्कि जिस दिन तुम्हें पसंद किया था उसी दिन अपने वालिदैन को लेकर यहां पर पहुंच जाता। मैं कहता हूं, जब एक बार मर्द इरादा कर ले तो कौन होता है उसे उसके इरादे से पीछे हटाने वाला? वो जब कुछ करने पर आ जाता है तो कोई भी इंसान उसे रोक नहीं सकता। उसकी अपने घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते और ना ही लड़की के घर वाले। उसने कहा, तैयारियां करो, तुम्हारा निकाह मुझसे हो रहा है। ये अल्फाज नहीं बल्कि बम था जो उसके सर पर गिरा था। वो हैरत और बेयकीनी की मिलीजुली कैफियत से उसके चेहरे को देखने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूं। निकाह की तैयारी शुरू करो। एक बार फिर से बोला तो वो चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। मगर वो उसकी बातों को नजरअंदाज करता वहां से जा चुका था। कमरे में दाखिल होने से पहले वो सिर्फ एक बार पलटा, मुस्कुराया। उसने सिर्फ यही कहा था कि वो इंसान तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। तुम चाहे इस घर से भाग क्यों ना जाओ, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जलील करेगा। ये कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि अपने कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वो पूरी रात जुनैद को कॉल मिलाती रही, मगर वो उसकी फोन कॉल उठा नहीं रहा था। ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ था। पूरी रात वो रोती रही, तड़पती रही। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था और अपनी बेवकूफियों पर रोना भी आ रहा था। गुस्से से उसका बुरा हाल था। सुबह सवेरे वो काजिम शाह के कमरे में पहुंच गई। क्या मेरी बीवी निकाह की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है? उसने गौर से इसके छोटे से नाक को देखते कहा तो वो मजबूत लहजे में बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर आपसे निकाह करूंगी। अगर आप मुझे मिलवाने के लिए उस जलील इंसान के घर ले जाएं। मैं एक बार उसका सामना करना चाहती हूं
और उससे पूछना चाहती हूँ कि वो सब कुछ क्या था। ठी है, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं, मगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिलेगी। वो फिर से संजीदा हुआ। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने जितनी तकलीफ उठानी थी उठा ली, मैंने जितना रोना था मैं रो चुकी हूं, अब मजीद में किसी की वजह से दर्द नहीं सहूंगी। और मुझे इस बात का भी पता चल गया है कि उसने मेरे साथ बेवफाई की है, मगर उसने ऐसा क्यों किया मैं सिर्फ और सिर्फ उससे ये जवाब लेना चाहती हूं, ताकि अगर बाद में मेरी कोई बेटी पैदा हो तो मैं उसे मर्द की फितरत के बारे में अच्छे से समझा सकूं। तुम्हें हमारी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसे सब कुछ समझा दूंगा। वो जल्दी से बोला तो वो गुस्से से उसे घूरने लगी। ठीक है, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें लिए चलता हूं। ये कहकर उसने चाबी उठाई और बाहर की तरफ निकल गया। वो भी चादर ओढ़कर उसके पीछे ही घर से बाहर निकली। आमना बेगम और फारिया हैरानगी से उन दोनों को बाहर जाता देख रहे थे। अम्मी, मैंने आपको कहा था ये हमारे काजिम को छीन लेगी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख लिया ना कैसे उसे अपने इशारों पर नचा रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बेटे को जानती हूं, वो कभी किसी का छोड़ा हुआ नहीं उठाता, ये तो फिर एक औरत है, उन्होंने गरूर से कहा। लेकिन यहां पर वो गलत थी, वो अपने बेटे को बिल्कुल नहीं जानती थी। अगर वो उसे जानती होती तो कभी इस तरह की बात ना करती। फारिया फिक्रमंदी से उन दोनों को जाता हुआ देख रही थी। तकरीबन 1 घंटे के रास्ते के बाद वो उसके घर पहुंच चुके थे। दरअसल पिछली ही रात ही काजिम ने उसके बारे में सारी डिटेल निकलवा ली थी। वो एक बहुत बड़े सियासतदान का बेटा था, जिसकी जिंदगी में और भी लड़कियां थीं, और वो उन लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी रख चुका था। खुदा का शुक्र था कि वो इस मामले में बच गई थी। चूंकि उसे घर से ज्यादा देर बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए वो उससे सिर्फ चंद घंटों की मुलाकात करती। वो आज तक उसके साथ फ्लैट जाने के लिए रजामंद नहीं हुई थी, और वो इन्हीं चक्रों में था कि किसी तरह से अपने जाल में फंसा ले, मगर जब वो ना फंसा सका तो छोड़कर चला गया। वो इस वक्त उसके घर में खड़ी थी, जबकि वो परेशान कभी पीछे देखता तो कभी उसकी तरफ देखता। तुम यहां पर क्यों आ गई? अगर अम्मी अब्बू ने देख लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, इसका हाथ उठा और जुनैद के चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम एक जलील और घटिया तरीन मर्द हो। इससे पहले कि जुनैद उसे कुछ कहता, काजिम सामने आकर खड़ा हो गया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने अपने दिल में दबा हुआ सवाल फिर से पूछा तो वो नफरत से कहने लगा, क्योंकि तुमने मुझे मौका दिया था। अगर तुम मुझे मौका ना देती तो मैं ऐसा कभी ना करता। वो बिल्कुल खामोश हो गई। ठीक ही तो कह रहा था, इसी ने तो उसे इजाजत दी थी कि वो उसकी जिंदगी में आए, उसके दिल से खेले। अगर जरमीना ने उस पर यकीन किया था तो ये जरमीना का मसला था, इसमें उसका क्या कसूर था? वो तो हर दूसरी लड़की के पीछे इसी तरह से ही पागल था। वो अपने टूटे हुए दिल के साथ घर वापस आ गई। पूरा रास्ता रोती रही, जबकि कासिम खामोशी से उसे टिश्यू पकड़ाता जा रहा था। उसी शाम उन दोनों का निकाह हुआ, मगर वो मुकम्मल तौर पर खामोश थी। यूं लगता था जैसे उसके दिल से जज्बात और एहसासात खत्म हो गए हों। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो रोते हुए कहने लगी, अब मेरे दिल में कुछ भी नहीं बचा। मुझे खुशी हो रही है कि जुनैद के लिए तुम्हारे दिल में अब कुछ नहीं बचा। काजिम ने उसकी बात को तब्दील कर दिया तो वो शिकायती नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वक्त दूंगा, जितना चाहे टाइम ले लो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। और इस घर में तुम्हारी हैसियत मेरी बीवी किसी होगी। अगर कोई भी तुम्हें कुछ कहे तो तुम्हें मुझे बताना है, और किसी से भी दब कर रहने की जरूरत नहीं। अपनी बात करता हुआ वो तकिया उठाकर सोफे पर लेटने चला गया। वो खुद नहीं जानता था कि आखिर वो क्यों इस लड़की के इतने नाज नखरे उठा रहा है, वो क्यों उस लड़की से इतनी मोहब्बत करने लगा है। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता
وہ کاظم شاہ کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی، اس کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتی تھی۔ آمنہ بیگم بھی بیٹے کی خوشی دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ جبکہ فاریہ کی شادی ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ اب اس کے گھر میں صرف سکون ہی سکون تھا۔ میں ابھی تک ان الفاظ کے انتظار میں ہوں۔ ایک دن وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو کاظم منہ بناتے بولا، آپ جانتے ہیں کہ میرا دل آپ جیت چکے ہیں۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مگر میں یہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس نے زرمینہ کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ اگر میں نہ بولوں تو؟ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ زرمینہ نے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکایا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ کوئی بہت ہی خوبصورت گیت تھا جو زرمینہ نے اسے سنایا تھا۔ وہ سرشار ہو گیا۔ اس نے اپنی تھوڑی اس کے سر سے ٹکا دی۔ اس دن کے بعد اسے کبھی وہ خواب بھی نہیں آیا تھا اور اسے اس خواب کا مطلب بھی پتہ چل چکا تھا۔ وہ زرمینہ ہی تھی جو اسے مدد کے لیے پکارتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔